Hello everyone, this is Suvendu, your physics mentor, and welcome to our session number 8 of our chapter Electric Charges and Fields that is available in class 12 physics in our both in our CHSE and CBSE physics. And up to class or session 7, we have discussed our electric field intensity. And in this session, basically we will discuss our electric field intensity का जो superposition principle. So superposition principle in relation to electric field intensity and some of the best numericals we will discuss in this session. Okay. So without any delay, let's start this session. Okay. So our today's topic is superposition principle in case of electric field intensity. So what the content is telling actually, now see, let us think this is charge Q naught and this is point P, and at point P a test charge Q naught is placed. Okay, and from this point P at a distance R1 your charge Q1 is present, and at a distance R2 your charge Q2 is present. Similarly, at a distance Rn our charge Qn is present. So what is our aim? So our aim is to find what is the total amount of electric field intensity at point P acting due to the number of charges present in this system. Basically, in order to find the electric field intensity, direction of electric field intensity, we have to choose unit positive test charge. Let us think this is Q naught, a test charge. Its magnitude is very, very small so that it can affect the electric field of the source charge. That part already covered in previous session. So this Q1 will repel Q naught. That means this is the direction of E1 vector. Similarly, this Q2 will repel Q naught along this direction. So this is the direction of E2 vector. Like this Q1 charge also repel Q naught along this direction. So this will be the value of En vector. So what the principle of superposition is telling? If a system contains n number of charges, then electric field intensity, net electric field intensity at any point is the vector sum of the electric field intensity acting at this point due to all other remaining charges present in the system at a time. That means we can say, so as per the statement, what we can write as per the statement? If a system contains n number of charges, then net electric field intensity at any point is the vector sum of electric field intensity at that point due to all the charges present in the system. Due to all the charges present in the system taken at a time. That means we can say that is net electric field intensity E net vector at P. E net vector at P is equals to E1 vector plus E2 vector up to En vector. This small n En vector. I think this formula is clear to all of you.
and at point P, remember for point P this Q1 behaves as a source charge. So electric field intensity at point P due to a point source charge. तो फॉर्मूला क्या है? K into source charge का magnitude divided by square of the separation between point of observation and source charge. Like this, we can expand this formula as per this content. We can expand this net electric field intensity. Which way? Now see, we can expand this one. But we can write E1 वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? देखो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? K Q1 by R1 स्क्वायर. का डायरेक्शन क्या होगा? R1 कैप. Okay, when we will solve the numerical, it will be easier for you. But theoretical portion, we have to follow this method. E net vector is equals to E1 vector plus E2 vector plus En vector. That means E1 vector का आंसर क्या होगा? K into Q1 by R1 square into R1 cap plus K into Q2 by R2 square into R2 cap plus up to K into Qn divided by Rn square into Rn cap. So after taking common K means Coulomb's constant. K को कॉमन लेने के बाद this will be Q1 by R1 square into R1 cap plus Q2 by R2 square into R2 cap plus Qn by Rn square into Rn cap. तो ये Q को हम लोग ऐसे भी लिख पाएंगे 1 by 4 pi इप्सिलॉन नॉट. जो ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना, तो समेशन देकर ऐसे भी हम लोग सिंप्लीफाई लिख सकते हैं. सिंपली समेशन क्या होगा? समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI by RI square into RI cap. So this is the value of net electric field intensity at P due to principle of superposition or as per the principle of superposition. I think this theoretical content is very very simple for you, and when we will apply this content to the numerical, then you can understand the significance of the electric field intensity or superposition principle of electric field intensity. So without any delay, let's solve the question paper. So what the question is telling, now see. Here is our question paper, and as per the given question, now see, I think it is clearly visible to all of you. देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या बोल रहा है? देखो, the question is telling that Q1 is placed at this position, Q2 is placed here, and Q1 का वैल्यू क्या है? 10 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू -10 माइक्रोकूलम, एंड ये दोनों का जो मिड पॉइंट दे रहा है A पॉइंट, एंड Q1 Q2 के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2 मीटर, एंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड एट पॉइंट ABC. एट पॉइंट ABC पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू फाइंड करना है हमको, बिकॉज ऑफ द एंड हियर सिस्टम कंटेन्स 2 चार्जेस ओनली, तो Q1 एंड Q2. एंड देखो पहले A पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके बाद B पॉइंट, उसके बाद C पॉइंट को वी विल डिस्कस. So now as per our mathematical purpose, we have to assign Q1 Q2, or we have to convert Q1 and Q2 into SI system of units. So like this, to satisfy this condition, what is Q1? Q1 is equal to plus 10 microcoulomb. That means plus 10 into micro means 10 to the minus 6. That means 10 to the power minus 5 coulomb. And what is Q2 value? Minus 10 microcoulomb. That means minus 10 into 10 to the power minus 6. Means minus 10 to the power minus 5 coulomb. तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुमको, ये है तुम्हारा Q1 चार्ज एंड दिस इज योर Q2 चार्ज, एंड दोनों के बीच सेपरेशन कितना? 2 मीटर. यहाँ पे है तुम्हारा A पॉइंट, तो A पॉइंट से Q1 का डिस्टेंस कितना होगा? विल बी 1 मीटर, एंड Q2 का डिस्टेंस A पॉइंट टू Q2 का डिस्टेंस और सेपरेशन कितना होगा? दैट विल बी आल्सो 1 मीटर. So our aim is to find what is the net electric field intensity at A. उसका मैग्नीट्यूड क्या है? सॉरी,
as per the question we have to find the magnitude E at a question. तो इंटेंसिटी एट ए किसके लिए हो पाएगा? इंटेंसिटी एट ए विल बी ड्यू टू द चार्ज Q1 and the source charge Q. Okay. So, and in this case we know that in order to find the electrical intensity we have to use the formula KQ by R square, and Q का क्या लेना चाहिए? मैग्नीट्यूड लेना चाहिए. Yes. So as per that condition, so E at A, E net at A, आंसर क्या होगा? देखो K इंटू आंसर क्या होगा? K इंटू Q1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा? हाउ टू सॉल्व दिस? रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. वी नो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड इन दिस केस, बट टू नो द डायरेक्शन व्हाट वी हैव टू डू? जिस पॉइंट पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहिए, सिंपली प्लेस ए क्यू नॉट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट. समझ दिया सबको? यस. तो ये जो यहाँ पे कितना चार्ज अवेलेबल है? 10 to the power minus 5 कूलम, एंड हियर minus 10 to the power minus 5 कूलम. तो जो पॉजिटिव चार्ज ये क्यू नॉट को क्या करेगा? अभी रिपेल कर देगा. सो दिस विल बी E1 है. एंड जो Q2 चार्ज, ये Q2 charge negative, this negative charge will attract the test charge, unit positive test charge. This is E2 vector. I think it is clear to all of you. तो इसी हिसाब से हमको पता चल गया जितना मैग्नीट्यूड होगा ना E1 और E2 का, के बाद दोनों का क्या करना चाहिए? हमको एडिशन लेना चाहिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने, क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. दैट मीन्स फर्स्ट यू फाइंड व्हाट इज E1. E1 का वैल्यू क्या होगा? K इंटू Q1 बाई R1 स्क्वायर. That means K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 and Q1 का वैल्यू 10 to the power minus 5 divided by 1 square. So the answer will be 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Electrical intensity का magnitude 3 unit. And E2 का वैल्यू क्या होगा? K into Q2 divided by R2 square. KQ by R square ना. तो 9 into 10 to the power 9 and Q2 देखो माइनस पे है, नेगेटिव चार्ज, बट वी हैव टू असाइन पॉजिटिव वैल्यू. वी हैव टू थिंक अबाउट द मैग्नीट्यूड. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर. दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. तो आज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. तो नेट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई नेट मैग्नीट्यूड, ई नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली यू हैव टू रिमेंबर E1 प्लस E2. सिंपली ऐड देम. तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 to the power. आंसर कितना होगा? 2 times of 9 into 10 to the power 4. So the answer will be 18 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. 18 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. This is your answer. I think this point is very clear to all of you. So remember one thing, जितना सारा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे ना, उसी हिसाब से आइडिया आ जाएगा तुम्हारा हाउ टू सॉल्व द सुपर क्वेश्चन प्रिंसिपल का जो न्यूमेरिकल्स. So this is about the at point A. ये यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा at point. नेक्स्ट विल डिस्कस at point B. B पॉइंट के पास चलो. अभी देखो इधर फिर से हमको ये डायग्राम के बारे में सोचना है B पॉइंट के लिए. यस. तो नाउ विल प्रोसीड फॉर पॉइंट बी. अच्छा, तो जिस पॉइंट पे हम लोग इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्यू नॉट को प्लेस कर दो. तो क्यू नॉट प्लेस करने का मतलब क्या है? उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा. तभी जाकर पता चलेगा हमको वी हैव टू ऐड और वी हैव टू सब्सट्रैक्ट और व्हाट एवर द सिचुएशन है. तो ये Q1 का वैल्यू क्या था? Q1 का वैल्यू था पॉजिटिव एंड Q2 का ये तो नेगेटिव था. ये जो पॉजिटिव चार्ज ये क्यू नॉट को क्या करेगा? आगे बोलो. पॉजिटिव विल रिपेल द क्यू नॉट. So this will be E1 vector and this negative charge ये Q नॉट को क्या करेगा? रे अट्रैक्ट करेगा. This will be along this direction. This is the direction of E2 vector. तो यहाँ पे पता चल गया E1 vector and E2 vector both are acting at point B but in opposite direction. Opposite direction होने से we have to subtract and subtraction पे हमको फोकस करना चाहिए ग्रेटर माइनस लेसर, क्योंकि हमको पूछ रहा है वो
मैग्नीट्यूड के बारे में, तो डायरेक्शन असाइन नहीं करना चाहिए। ओके, सो सिंपली मुझे बोलो अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1। आंसर क्या होगा, के Q1 बाई R1 स्क्वायर। के का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9। Q1 का वैल्यू 10⁻−5 बाई R1 स्क्वायर। यहीं पे फोकस करो, कॉल आ रहा है, वेट करो। ओके, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−5 बाई R1 स्क्वायर। R1 क्या है अभी, R1 का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से लेकर जो चार्ज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सोर्स चार्ज, उसके बीच में जो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर का स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है अभी 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, वही होगा के Q2 बाई R2 स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 एंड Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, Q2 का मैग्नीट्यूड था हमारा 10⁻−5, नेगेटिव था ना मैग्नीट्यूड, हम लोग कंसिडर करें बाई R2 का स्क्वायर। R2 क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन B का जो डिस्टेंस दैट इज फ्रॉम Q2। सो Q2 से लेकर B पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 मीटर, 1 मीटर दैट इज 3 मीटर, 3 मीटर का स्क्वायर दैट मीन्स 9। ये कैंसिल हो जाने के बाद देखो 10⁻4 न्यूटन पर। तो अभी मुझे बोलो हु इज ग्रेटर, E1 इज ग्रेटर देन E2, पता चल जाएगा हमको। दैट मीन्स ई नेट एट बी कितना होगा, E1 माइनस E2। तो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस थिंग, 9 इंटू 10⁻4 माइनस 10⁻4, तो कॉमन ले जाओ 10⁻4, कितना बचा, 9 माइनस 1, तो 8 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। This is the net electric field intensity का magnitude at point B as per the given question। तो इसी हिसाब से हमको अभी प्रोसीड करना चाहिए फॉर पॉइंट सी। पॉइंट सी को ऑब्जर्व करो, एक ही क्वेश्चन में 3 थिंग्स आर अवेलेबल। तो पॉइंट सी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करें। पॉइंट सी दिखाई दे रहा है सबको, यस। तो जिस पॉइंट हमको कैलकुलेट करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो प्लेस द यूनिट पॉजिटिव प्लेस चार्ज। इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, एंड ये हमारा सोर्स चार्ज फॉर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सी के लिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये तुम्हारा दे रहा है √3 मीटर, ए पॉइंट तो मिड पॉइंट, अच्छा मिड पॉइंट होने से ये वैल्यू 1 मीटर हो गया। तो ये कितना होगा, 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। सिमिलरली ये डिस्टेंस पे कितना होगा, दैट इज ऑल्सो, आई थिंक इट इज क्लियर। एंड टू नो द डायरेक्शन, क्या करना चाहिए हमको, ओके डायरेक्शन के बाद, डायरेक्शन के बिना कुछ प्रोसीड नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो टू नो द डायरेक्शन वी हैव टू असाइन Q नॉट वैल्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट सी। ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ये Q नॉट को क्या करेगा अभी, ये Q नॉट को रिपेल कर देगा ऐसे। दिस इज योर E1 वेक्टर। एंड ये जो Q2 नेगेटिव चार्ज, ये Q नॉट को क्या करेगा अभी, दैट विल अट्रैक्ट द Q नॉट, माइनस चार्ज ना, दिस इज E2 वेक्टर। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर, इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यू हैव टू फाइंड। तो इन दोनों के बीच में एंगल तो पता नहीं है ना। तो देखो ये जो 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर, ये 2 मीटर, सो क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ईच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी होगा तुम्हारा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री होने से ये कितना होगा, 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री हो गया। तो नाउ यू टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर। E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, k इंटू Q1 बाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर होगा 9 इंटू 10⁻9। Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, 10⁻−5। हाँ, डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, इस 2 स्क्वायर 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 9/4, 9/4 इंटू 10⁻4 टन पर। लाइक दिस व्हाट इज E2 वेक्टर मैग्नीट्यूड, E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a इंटू Q2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। दिस विल बी 9 इंटू 10⁻9 एंड Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 10⁻−5 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। दिस विल गिव अस 9/4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर।
तो इसमें यह पता चल रहा है E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। लेट इट बी x, लेट इट बी x। तो तुम्हारा पिक्चर में अभी क्या हो गया, देखो तुम्हारा पिक्चर का जो सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हुआ, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड x, दूसरा का मैग्नीट्यूड क्या है x दे रहा है तुमको, एंड दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है 120, दोनों के बीच में एंगल कितना 120 डिग्री। तो तुम्हारा रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू ई नेट मैग्नीट्यूड, ई नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ई नेट कहाँ पे 8, आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 120 cos 120 कितना -1/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर, ये प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू -1/2 देन रूट ओवर। तो कैंसिल होने के बाद क्या हुआ 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस होने से एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज x का वैल्यू क्या है 9/4 इंटू 10⁴ टन पर कूलम, 9/4 मीन्स दिस इज 2.25 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। Basically, this is our answer as per the given question. So this is the magnitude of electric field intensity at point C as per the given question. देखो एक ही क्वेश्चन में 3 थिंग्स आर अवेलेबल, तीनों को सॉल्व करने का प्रोसीजर एक ही है, लेकिन कैलकुलेशन पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट आंसर ही निकल आ रहा है। ओके, आई थिंक क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So what the question is asking? Now all of you sit. Question is asking, find the net electric field at origin. Origin देखो दिखाई दे रहा है, ये है तुम्हारा origin and the point at which, here our point of observation is origin and the point at which you have calculated the electric field intensity, you have to assign, in order to know the direction you have to assign a unit positive q naught। देखो ये सारा का सारा चार्ज जितना भी पोजीशन दिखाई दे रहा है तुमको, सपोज ये ले जाओ पोजीशन 1, ये ले जाओ पोजीशन 2, इसको ले जाओ पोजीशन 3, ऐसे मान लो पोजीशन 4, इतना सारा पोजीशन दिखाई दे रहा है, सारा का सारा वैल्यू क्या है 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम। दैट मीन्स all source charges are located at different points, that is all are positive in nature। पॉजिटिव होने से क्यू नॉट को क्या करेगा, तो ये 10 माइक्रोकूलम क्यू नॉट को ऐसे रिपेल करेगा, तो दिस इज E1 वेक्टर, ये 10 माइक्रोकूलम दिस विल रिपेल क्यू नॉट, दिस इज योर E2 वेक्टर, along this direction also you will get E3 vector like this। So basically all the electric field intensities are acting in same direction, are acting along same direction। तो क्या होगा, दोनों का सबका मैग्नीट्यूड का क्या होगा एडिशन ही लेना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन होने से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होने से सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर, एंड कोई बीच में एंगल आ जाएगा तो वेक्टर एडिशन का जो मैग्नीट्यूड का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर। तो इन दिस केस, क्या करना चाहिए हमको, फर्स्ट टू कैलकुलेट द E1 वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो E1 का आंसर क्या है k इंटू Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। तो प्रोसीडिंग विथ दिस फॉर्मूला, k का आंसर क्या हुआ, k को k ले जाओ, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करने से देखो डायरेक्ट हम लोग ऐसे प्लेस करेंगे, ई नेट इज इक्वल टू E1 देन प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिट, तो E एट इन्फिनिटी अप टू प्लस E एट इन्फिनिटी। ऐसे ही प्रोसीड करते चलोगे तो ये आंसर होगा k इंटू कितना होगा k/Q1/R1 स्क्वायर प्लस k/Q2/R2 स्क्वायर प्लस k/Q3/R3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। इन्फिनिट तो चलेगा। देखो Q1 Q2 Q3 Q4 ये सारा का सारा मैग्नीट्यूड क्या है बराबर 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम। तो इसको सिंपली क्या साइन करेंगे हम लोग,
एक मजेदार चीज क्या है, के का वैल्यू देखो, के लिख रहा हूं मैं, Q1 का वैल्यू कितना, 10 माइक्रो मीन्स 10 इंटू 10 to the power -6, दैट विल बी इक्वल टू 10 to the power -5 कूलम। तो ईच सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, 10 to the power -5। तो के इंटू 10 to the power -5 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, ये देखो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से Q1 का स्क्वायर कितना, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म पे क्या होगा, के इंटू 10 to the power -5 डिवाइड बाई R2 का वैल्यू क्या होगा, 2, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस के इंटू 10 to the power -5 डिवाइड बाई ये कितना होगा, 4 मीटर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो क्या कॉमन ले आने चाहिए हमको, के इंटू 10 to the power -5 को कॉमन ले जाओ। कॉमन ले आने से क्या होगा, के इंटू 10 to the power -5, देन ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। यस, तो इसका आंसर क्या होगा, के इंटू 10 to the power -5 दैट इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज ई नेट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 10 to the power -5, के इंटू 10 to the power -5। के बाद क्या लिखा है देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस टर्म के बीच में, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन रेशियो कितना, 1/4 दिखाई दे रहा है। तो उसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/4, हो गया आंसर बस। तो फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, इसका आंसर क्या रहा है, 9 इंटू 10 to the power 4 इंटू 1 बाई क्या रहा है हमारा, 3/4। तो 9 इंटू 10 to the power 4 इंटू 4 बाई कितना आ रहा है, 12 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। आंसर इज आवर 12 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 1 प्लस 1/4 देखो आ रहा है ठीक से, ओके। तो दिस इज एज पर द गिवन क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग यूज करके ये फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, देखो हमको पता चल रहा है एक्चुअली ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड उन दोनों का क्या होगा, उन सारा का सारा टर्म, इनफाइनाइट टर्म्स का जो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ऐड हो जाएगा सिंपली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलो। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो उसी तरीके का है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या दिया है देखो। इसमें थोड़ा ट्रिक अप्लाई करोगे तुम लोग, क्या अप्लाई करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। द पॉइंट एट व्हिच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज प्लेस करेंगे। तो क्यू नॉट प्लेस करने के बाद क्या होगा देखो, यहाँ पे जितना सारा पॉइंट दिखाई दे रहा है तुमको, ये तुम्हारा 1 पॉइंट, ये तुम्हारा 2, पोजिशन 2, पोजिशन 3, पोजिशन 4, अप टू इन्फाइनाइट। ये जो सोर्स चार्ज दिखाई दे रहा है Q1, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, Q2 -10 माइक्रोकूलम, देन पॉजिटिव चार्ज, देन नेगेटिव चार्ज एंड सो ऑन। इस हिसाब से उसका डायरेक्शन भी इधर उधर हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ये 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज ये Q नॉट को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, दिस इज योर E1 वेक्टर। ये माइनस चार्ज ये Q नॉट को अट्रैक्ट करेगा, दिस विल बी E2 वेक्टर। देन ये प्लस चार्ज Q नॉट को फिर से रिपेल करेगा, दिस इज योर E3 वेक्टर। एंड पॉइंट पोजीशन 4 पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर लेगा ऐसे। तो देखो ऑपोजिटली कुछ ना कुछ इंटेंसिटी अवेलेबल है। इस डायरेक्शन पे E1, E3, देन E5, इस डायरेक्शन पे E2, E4। so in order to avoid the confusion what we have to do, now see, सिंपली मैं लिख रहा हूँ E1 वेक्टर, आंसर क्या होगा, ये तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन दिखाई दे रहा है तुमको, तो सिंपली मेंशन करो K इंटू Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर इंटू कितना होगा, -I कैप, -I कैप। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो, K को मैं K मान रहा हूँ बस। Q1 का तो मैग्नीट्यूड लेना चाहिए हमको, 10 माइक्रो मीन्स 10 to the -5 कूलम डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। R1 कितना है यहाँ पे, 1, 1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ रहा है, K इंटू 10 to the power -5 -I कैप न्यूटन पर कूलम। इसी हिसाब से देखा जाएगा तो E2 वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, K इंटू Q2 बाई R2 स्क्वायर इंटू प्लस आई कैप, क्योंकि ये E2 वेक्टर प्लस आई कैप में है, तो ये मैं लिख रहा हूँ प्लस आई कैप। तो 9 इंटू 10 to the power 9 Q2
हमको पता है Q2 इज नेगेटिव चार्ज, बट वी हैव टू असाइन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेने से क्या होगा, 10⁻⁵ कूलम डिवाइड बाई R2। R2 मीन्स क्या है, 0 एंड 2 के बीच में डिस्टेंस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा आई क्या, फाइनल आंसर क्या होगा, के को ऐसे क्या लिखो, बाद में इसको पुट करेंगे के का वैल्यू। ओके, एक ही फॉर्मेट में हम लोग यूज करेंगे तो अच्छा होगा कैलकुलेशन के लिए। तो के इंटू 10⁻⁵, लम्स कांस्टेंट 10⁻⁵ बाई 2 का स्क्वायर, आंसर हुआ के इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई कितना, 4 इंटू आई कैप, लाइक दिस। E3 का वैल्यू क्या होगा, E3 वेक्टर, तो के Q3 बाई R3 स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप और प्लस आई कैप, माइनस आई कैप दिखाई दे रहा है E3, वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा अभी, के इंटू वही मैग्नीट्यूड लेना चाहिए 10⁻⁵ डिवाइड बाई R3 स्क्वायर। R3 क्या पता चल रहा है, पोजीशन 3 का पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो डिस्टेंस 4 मीटर, तो 4 मीटर होने से क्या होगा 16 माइनस आई कैप एंड सो ऑन। So what you have to do after this thing? After this thing, we have to find the net intensity. So net intensity calculate करने के लिए we have to follow this method. Net intensity E net vector. E net vector is equal to E1 vector plus E2 vector plus up to E infinite vector. Okay. So ऐसे लिखो up to infinite, up to infinite. तो E1 का वैल्यू क्या आ रहा था, K इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 1, यहाँ पे कितना आ रहा था आई क्या, प्लस उसके बाद क्या आ रहा था हमारा E1 का वैल्यू, सॉरी E1 का वैल्यू देखो, E1 का वैल्यू माइनस आई कैप था, देन प्लस आई कैप, देन माइनस आई कैप, तो ये मैं लिख रहा हूँ माइनस आई कैप, देन प्लस में लिखूंगा, प्लस प्लस लिखने के बाद क्या होगा, के इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 4 इंटू क्या था आई कैप, देन प्लस के इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई कितना था हमारा 16 शायद था हमारा, देखो 16, यस 16 के बाद क्या है, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 8 लिखा है, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो उसी हिसाब से बस, तो 16 इंटू क्या था माइनस आई क्या, नेक्स्ट टर्म एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। एक काम करो, तुम लोग कॉमन क्या ले जाओगे, कॉमन ले जाओ माइनस आई क्या, माइनस आई क्या को मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड और क्या कॉमन ले रहा हूँ, के इंटू 10⁻⁵ को भी कॉमन ले रहा हूँ। उसके बाद क्या मिलेगा हमको ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे ये चीज हो जाएगा, माइनस आई क्या कॉमन लिया हूँ मैं, ये टर्म पे क्या बचेगा -1/4, देन +1/16, नेक्स्ट -1/64, 8 था ना, एंड सो ऑन लाइक दिस, ब्रैकेट क्लोज। ये भी देखो, जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन रेशियो कितना आ रहा है -1/4। ओके देखो, तो -1/4/1 कितना आ रहा है -1/4, 1/16 डिवाइडेड बाई -1/4, उसको भी चेक करो -1/4 ही मिलेगा। तो दैट मीन्स ये आंसर क्या मिलेगा हमको, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁵, एंड यहाँ पे फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो तो मिल रहा है हमको -1/4, एंड ये है माइनस आई क्या, इसी हिसाब से 9 इंटू 10⁻, ये मिल रहा है हमको 4, देन ब्रैकेट में 1 बाई ये कितना हुआ 1 + 1/4, दैट मीन्स 5/4, 5/4 माइनस आई क्या। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हमको मिल जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁴ इंटू 4/5 इंटू माइनस आई क्या, फाइनली ये आंसर मिल रहा है हमको 36/5 इंटू 10⁴ माइनस आई क्या। 36/5 को कैलकुलेट करने से क्या मिलेगा हमको 7.2 इंटू 10⁴ माइनस आई क्या न्यूटन पर कूलम। देखो ये जो मैं आंसर अभी सॉल्व किया हूँ ना, तो हमको पता चल जाएगा उसका डायरेक्शन भी क्या है, एक ही बीट में हमको पता चल जाएगा। मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, तो दस वी कैन राइट ई नेट वेक्टर मैग्नीट्यूड, दैट आंसर विल बी 7.2 इंटू 10⁻⁴ कितना 4 न्यूटन पर कूलम, and direction is along negative I axis, negative x axis. Okay, so in this way
We have to solve this numerical as per the principle of superposition. अभी without any delay, let's solve another question. देखो, what the question is telling? Two point charges of 5 into 10 to the minus 19 कूलम, इसको ले जाओ Q1, तो पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल, and plus 20 into 10 to the minus 19 coulomb are separated by a distance of 2 meter. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. So electric field intensity 0 पूछ रहे हैं हमको. That means let us think this is your charge Q1 and this is charge Q2, and the separation between these two charges, let it be कितना दे रहा है हमारा 2 meter. This separation is given 2 meter. And let, यहाँ पे देखो दोनों का चार्ज क्या है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या यहाँ पे मिलेगा हमको, इन दोनों के बीच में कहीं पॉइंट. लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट, ये है तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट. ओके, तो न्यूट्रल पॉइंट Q1 से कितना दूरी पर है, x मीटर दूरी पर है, तो Q2 से कितना दूरी पर होगा, 2 माइनस x मीटर डिस्टेंस. क्लियर? तो as per the given question, net intensity at P is will be 0. So net intensity according to question, E net at P, E net at P will be 0. E net at P is equal to 0. ये कब 0 होगा, देखो यहाँ पे सपोज मैं Q0 प्लेस करूंगा तो क्या होगा, ये Q1 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव Q0 को ऐसे रिपेल करेगा, दिस इज योर E1 वेक्टर. एंड ये Q2 पॉजिटिव चार्ज, ये Q0 को ऐसे ही रिपेल करेगा, E2 वेक्टर. ये दोनों इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होने से, ये दोनों इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होने से नेट इंटेंसिटी क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा. तो आज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E net at P is 0, which implies we can write E1 vector magnitude will be equal to E2 vector magnitude. Now tell what is the magnitude of E1 vector. फॉर्मूला क्या है, k into Q1 by R1 square is equal to k into Q2 by R2 square. R1 R2 पता होगा तुमको क्या है, k के कैंसिल हो गया. Q1 का वैल्यू क्या दे रहा है, 5 into 10 to the minus 19, 5 into 10 to the power minus 19 डिवाइड बाई R1 क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से Q1 का जो डिस्टेंस कितना x, दैट मींस x हो जाए. इसका वैल्यू क्या है, Q2 का 20 into 10 to the power minus 19 डिवाइड बाई 2 minus x. कैंसिल होने के बाद देखो 10 और माइनस 19 तो कैंसिल हो गया, 5 पे हमें 4 मिल रहा है हमको, तो आंसर क्या हुआ, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर. So taking square root on both sides, this will be 1 by x is equal to 2 by 2 minus x. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2x will be equal to 2 minus x. माइनस x को इधर ले आने से which implies 3x is equal to 2. That means x is equal to 2 by 3 meter. This will be the answer. तो ये जो पोजीशन पूछ रहा था ना, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट P is at a distance 2 by 3 meter from which charge, from Q1 charge, and we have assigned 5 into 10 to the minus 19 coulomb, that is our charge Q1. I think this question is fully clear to all of you. देखो ये भी एक तरीका का क्वेश्चन अवेलेबल है, ये सो मेनी क्वेश्चंस आर अवेलेबल. जितना न्यूमेरिकल करोगे तुम लोग, उतना ही तुम्हारा माइंड का एक्सपेंशन हो जाएगा. ये एक बेहतरीन क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5. देखो क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछ रहा है, हाउ वी कैन जज, हाउ वी कैन प्रोसीड. ओके, तो चार्ज कॉर्क बॉल, ये तुम्हारा चार्ज कॉर्क बॉल, ये तुम्हारा चार्ज कॉर्क बॉल ऑफ मास m is suspended on a light string in the presence of a uniform electric field as shown in figure. ये जो तुम्हारा लाइट स्ट्रिंग ब्लू कलर लाइन, एंड ये जो लाइन दिखाई दे रहा है पिंक कलर पे, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर. तो ई वेक्टर का वैल्यू क्या दे रहा है, ई वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप न्यूटन पर कूलम. तो गिवन दे रहा है ई वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप न्यूटन पर कूलम. इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो जनरल
एक्सप्रेशन से ये होगा तुम्हारा ई एक्स आई कैप प्लस इट विल बी ई वाई जे कैप, ई एक्स आई कैप plus EY कैप न्यूटन पर कूलम। दैट मींस along x axis इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है मैग्नीट्यूड a and along y axis b amount of electric field intensity is available where a b are positive number then the ball is in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है एक्चुअली? इक्विलिब्रियम का मीनिंग है जिस पोजीशन पे वो बॉडी है ना, तो जितना सारा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है इन टोटल वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन a particle is zero then body is said to be or particle is said to be in equilibrium। so that means at this position इसके ऊपर कितना सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको जज करो। आफ्टर दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन का इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का जो कंटेंट तो अप्लाई करोगे। तो क्वेश्चन पूछा है तुमको द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम एट द एंगल थीटा। अच्छा ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बॉल ऐसे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आकर वो इक्विलिब्रियम पे अवेलेबल है। दैट मींस इस पोजीशन पे उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। ये एंगल थीटा दे रहा है विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो थीटा एंगल ऐसे क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया। तो फाइंड द चार्ज ऑन द बॉल। सो आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस q that we have to find? Well, how to proceed the question number? Now see, ये तुम्हारा स्ट्रिंग, ये क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रिंग, एंड दिस इज द चार्ज q। ये तुम्हारा चार्ज q और उसका मास दे रहा है m, सो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सो दैट मीन्स वेट इज mg। देन यहाँ पे जो एंगल दे रहा है दिस एंगल इज मेंशन थीटा। So along the string which force will act? Tension force will act, tension T। आफ्टर दिस ये टेंशन का दो कंपोनेंट को मिल जाएगा अभी। टेंशन फोर्स का जो दो कंपोनेंट एक होगा टी कॉस थीटा, अनदर वन विल टी साइन थीटा। तो कैसे होगा देखो, ये एंगल थीटा मीन्स ये देखो ये टू लाइन्स आर पैरेलल, इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस एंगल विल बी थीटा। तो एंगल अटैचिंग कंपोनेंट विल बी कॉस कंपोनेंट, दिस इज टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी टी साइन थीटा। देन और कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? एलोंग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एक्सर्ट सम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एक्सर्ट सम फोर्स अपॉन द चार्ज q। तो इसी हिसाब से यहाँ पे देखो x डायरेक्शन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है? x डायरेक्शन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है a। तो फोर्स अपन ने फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर क्या होगा? E इज इक्वल टू वी नो f वेक्टर बाय q, तो f वेक्टर इक्वल टू q e वेक्टर। तो इसी हिसाब से ये आंसर होगा तुम्हारा q इंटू ई एक्स। ये आंसर होगा तुम्हारा क्यू ई एक्स। एंड वाई एक्सिस में पॉजिटिव वाई एक्सिस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बी। तो ये आंसर क्या होगा? क्यू इंटू ई वाई। एंड ई एक्स का वैल्यू क्या है? ए, तो इट विल बी क्यू ए, दिस विल बी क्यू। ये पता चल गया तुमको? देखो वेट अप टू 1 मिनट। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आंसर क्या है? Q इंटू ई। तो एज पर द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट क्यू ई एक्स along electric field Ex amount of electric field is available। so that means Ex का आंसर क्या है इसमें इक्वेशन पे? Ex is equal to A and Ey is equal to B। तो ये हो जाएगा तुम्हारा QA, ये फोर्स हो जाएगा QB। बट देखो एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे Q चार्ज अवेलेबल है, तो वेरियस फोर्सेस आर एक्टिंग along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन QA, along नेगेटिव एक्स डायरेक्शन T sin थीटा। तो पूछ रहे हैं हमको एज पर द गिवन क्वेश्चन Q चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स T sin थीटा विल बी इक्वल टू QA। तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए आज, यहाँ पे लिखोगे आज Q इज इन इक्विलिब्रियम, Q इज इन इक्विलिब्रियम which implies T sin theta is equal to how much? T sin theta is equal to QA। and देखो नेट फोर्स along पॉजिटिव y डायरेक्शन
is equal to net force along negative y direction. So T cos theta plus QB is equal to mg, and T cos theta plus QB is equal to mg. So finally we can write T cos theta is equal to how much? Mg minus QB. Now take it as equation 1. This is equation 2. So equation 1 by equation 2 करने से क्या मिलेगा? T sin theta by T cos theta, that will be tan theta. So now we can write equation 1 divided by equation 2. So sin theta by cos theta, that will be tan theta, and RHS पे divide करने से QA by mg minus QB. This will be QA by mg minus, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको मिल जाएगा QA इज इक्वल टू mg tan थीटा माइनस QB tan थीटा. तो ये माइनस QB tan थीटा को LHS पे ले जाने से तो QA प्लस QB tan थीटा इज इक्वल टू कितना? mg tan थीटा. तो Q कॉमन ले आने से कितना बचेगा? A प्लस B tan थीटा इक्वल टू mg tan थीटा. दैट मीन्स Q का आंसर मिल रहा है हमको mg tan थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B tan थीटा. तो ये था हमारा, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q as per the required data. So as per the given data, the value of Q will be mg tan theta divided by A plus B tan theta. So the basic idea you have to apply in this question is, along x-axis the amount of electric field strength is Ex. That means as per the equation, equate करने के बाद Ex का value A, Ey is B. So the force expressed by the charge particle along x direction will be Qex, that is Qa, and the force expressed by the charge particle along positive y direction, that is your Qb along positive y axis. So I think this question is clear to all of you. Next देखो. So what the question is asking, now read the question paper properly. The question is telling, three charges are placed at the vertices of an isosceles right angle triangle, okay, and with charges plus q minus q at the vertices with acute angle. देखो ये जो vertices with acute angle, यहाँ पे चार्ज गिवन है प्लस q and minus q at point C. At point C minus q charge is there, and at the vertices with right angle plus 2q charge is present. So this is point B which is at right angle. तो यहाँ पे charge available is plus 2q. So determine which of the number vectors coincide in a direction with the field produced by these charges at the point that is at the middle of the hypotenuse. तो जो hypotenuse पे दिखाई दे रहा है point P, ये P point नेट इंटेंसिटी ड्यू टू द नंबर ऑफ थ्री चार्जेस कौन सा डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में कौन सा नंबर ऑफ वेक्टर अवेलेबल है, ओके, 1 और 2 वेक्टर और नंबर 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर जो भी अवेलेबल है उसको फाइंड करो. तो सिंपली इन द होल क्वेश्चन, द क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बहुत लेंथी, बट एज पर द क्वेश्चन पेपर ओके ये लेंथी नहीं है. सिंपली इट इज आस्किंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी. तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? देखो, the point at which you are going to calculate the electric field intensity, simply place q naught. q naught प्लेस करोगे तो q naught प्लेस करने से ये प्लस q, ये q naught को ऐसे रिपेल करेगा, ये ले जाओ a, so this is e a vector, clear. then ये माइनस q स्कैटर करेगा, तो दिस विल बी e p वेक्टर. पता चल गया तुम लोग को? देखो ये पॉइंट था तुम्हारा p पॉइंट, वही सेम डायरेक्शन पे दो चीज अवेलेबल मिला, ठीक है, तुम्हारा e b वेक्टर, another one is e a vector, and this is the midpoint of this hypotenuse. यहाँ पे b point पे plus 2q charge is present. This plus 2q charge will repel q naught along which direction? Along number 2 vector direction. ये था तुम्हारा number 2 vector direction, number 2. This is your e p vector, सॉरी ये हो जाएगा e c vector, सॉरी e c vector. ये क्या होगा हमारा? e c vector. and ये point b यहाँ पे plus 2q charge, this plus 2q will repel q naught along which number vector? 2 vector.
तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई पी वेक्टर। देखो तुमको अभी दो चीज दिखाई दिया अलोंग दिस डायरेक्शन। ये जो वेक्टर अभी दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो टोटल दोनों का वेक्टर सम कितना होगा, ई एस सी वेक्टर एंड ई एस सी वेक्टर एंड ई बी वेक्टर, ये दोनों का जो रिजल्टेंट that will act along this direction diagonal starting from their common tail point. This is the e net vector and the e net vector किस नंबर ऑफ वेक्टर के साथ मैच हो रहा है, नंबर 3 वेक्टर के साथ मैच हो रहा है। So as per the given question, what is the answer? Answer is number 3 vector. I think it is clear. देखो सिंपली Q नॉट को प्लेस करो P पॉइंट पे, उसके बाद दिस Q will repel Q नॉट, दिस माइनस Q at C will attract Q नॉट। दैट मीन्स ये दोनों चार्ज के लिए जो नेट इंटेंसिटी कौन सा डायरेक्शन पे आएगा हमारा, 4 डायरेक्शन, नंबर 4 वेक्टर पे। तो नंबर 4 वेक्टर दिस डायरेक्शन एंड ये जो प्लस 2Q जो P पॉइंट को Q नॉट को रिपेल कर देगा, दैट इज नंबर 2 वेक्टर पे मिलेगा हमको। तो नंबर 2 एंड नंबर 4 वेक्टर, ये था तुम्हारा नंबर 4 वेक्टर एंड ये है तुम्हारा नंबर 2 वेक्टर। ये दोनों का रिजल्टेंट हमारा क्या है, नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन एंड नेट इंटेंसिटी डायरेक्शन इज अलोंग द नंबर 3 वेक्टर। I think it's very clear to all of you. Okay, now it's your duty to find the magnitude of net intensity at point P. सारा का सारा डाटा गिवन दे रखा है। ओके, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करो। ओके, एंड उसका आंसर कमेंट बॉक्स में प्लेस करो। So with this we have completed this question. नेक्स्ट कम कवर इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे पता नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्या दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What is there in our next question? Now see, a particle of mass m कहाँ पे है, ये वाला, a particle of mass m and charge q, this one is suspended from a point A, is suspended from a point A by the help of a silk thread of length L। ये A से लेकर ये पॉइंट का जो डिस्टेंस q चार्ज का डिस्टेंस कितना है, L। Then another particle of charge minus q, another particle of charge minus q fixed at a distance L, it is also fixed, this minus q charge is also fixed at a distance L from the point A, such that point A and the charge minus q, point A and the charge minus q lie in the same horizontal plane। Okay, as for the diagram, ये दोनों एक ही सेम horizontal plane पे ही अवेलेबल है। A charge, A point and minus q charge both are lying on a same horizontal plane। Then if at equilibrium the thread makes an angle 30 degree as for the figure with respect to vertical, ये तुम्हारा vertical, so at equilibrium this charge q makes an angle 30 degree with respect to vertical। so find the mass and the tension in the thread। तो mass का वैल्यू फाइंड करना है हमको and tension force in the thread we have to find। टेंशन दिखाई दे रहा है तुमको, टेंशन T। बेसिकली द यहाँ पे हिंट क्या दे रखा है देखो, इन दिस क्वेश्चन द हिंट इज द क्यू चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, द हिंट इज द क्यू चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो वेरियस फोर्सेस तो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, देखो एग्जर्ट हो रहा है। सो टी फोर्स ये तुम्हारा, एफ फोर्स नीचे एम जी। एफ फोर्स क्या है देखो, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, दोनों के बीच में कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस ये 30 होने से ये एंगल क्या होगा 60। ओके, ये एंगल सॉरी ये साइड एल, ये साइड भी कितना, ये लेंथ भी एल। ओके, तो ये दोनों का फ्रंट फेसिंग साइड एंगल कितना होगा, बराबर ही होगा। तो बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री यू कैन सी इस एंगल क्या मिल रहा है 60, ये एंगल 60। यहाँ पे एक आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, सॉरी आइसोसेल बोल रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एल 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 60 60 60 बस। तो एज पर द लामिस थ्योरम, as per Lami's theorem we can solve this question। Lami's theorem means sin theta। as per the Lami's theorem क्या बोल रहा है वो, mg by sin 60, mg by sin 60 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, t डिवाइडेड बाय ये एंगल। अच्छा ये एंगल तो पता करना चाहिए हमको। देखो ये 60 मिल रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या मिलेगा हमको, 60 मीन्स ये रिमेनिंग एंगल विल बी 300, 300 बाई 2 150। सो ये मिलेगा हमको 150 डिग्री।
ये भी 150 डिग्री। तो आंसर क्या मिलेगा इसमें देखो, तो t डिवाइडेड बाई sin 150 इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई sin 150। तो t डिवाइडेड बाई sin 150 इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई sin 150। तो इक्वेटिंग वी कैन राइट, ये दोनों इक्वेशन को जॉच करोगे तो t का आंसर क्या मिल रहा है f, and what is our aim to find the tension t, thus that is magnitude is equal to f वैल्यू। तो कूलम फोर्स का वैल्यू कितना होगा, k इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर। तो इसका आंसर मिल जाएगा हमको 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इज आवर आंसर। एंड अनदर थिंग इज मास पूछा है वो m, also from this equation we can equate one equation, mg divided by sin 60 is equal to f divided by sin 150। तो sin 150 पता है तुमको, sin 150 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग sin 90 प्लस 60। ओके, sin 90 प्लस थीटा कितना होगा, cos थीटा, cos 60। तो mg बाय sin 60 वैल्यू इज √3/2 and f divided by sin 150 इक्वल टू cos 60 दैट इज 1/2। 2 कैंसिल होने के बाद mg बाई √3 इज इक्वल टू कितना, f। तो m का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, √3f डिवाइडेड बाई g। तो √3/g, f का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, this is the value of mass m। I don't know whether you have remembered the sine law or not, or Lamis theorem। देखो Lamis theorem क्या बोल रहा है, as per the Lamis theorem, if a particle is in equilibrium under the simultaneous action of three forces, Lamis theorem, वो जो एक पार्टिकल ये P पॉइंट पे है, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F1, इधर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है F2 और नीचे F3। यस, ये एंगल कितना, अल्फा, ये एंगल कितना दे रहा है, बीटा, ये एंगल दे रहा है गामा। तो व्हेन द पार्टिकल ऑफ मास m at point P is in equilibrium, when the particle of mass m at P is in equilibrium, under the action of three forces, under the action of three forces simultaneously, then remember this thing, then f1 by sin alpha, f1 by sin alpha is equal to f2 by sin beta is equals to f3 by sin gamma। yes, इसको साइन लॉ भी बोल सकते हो। दिस इज योर लामिस थ्योरम। तो लामिस थ्योरम को ध्यान में रखो, तभी जाकर वो न्यूमेरिकल समझ में आएगा। तो क्लास 11 का स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर में एक एडिशनल टॉपिक के हिसाब से तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है लामिस थ्योरम और साइन लॉ, क्योंकि और एक चीज है कोसाइन लॉ और कॉस लॉ। ओके, बस आई थिंक आज का जो सेशन था हमारा, जितना सारा न्यूमेरिकल रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, okay, everything is clear to all of you? Yes, so your duty, it's your duty to solve all these questions without watching the content. First you understand the thing, okay, with your rough copy try to do the rough work, okay, try to do the calculation. So with this we have completed our session number 8, so wait up for next session number 9 for the upcoming lecture. So thank you, have a nice day, stay tuned for next update. Okay.